Yes, sir. Sir. Thank you. Okay, then. So this is your SBLC Lab 1, and in the morning we have seen that we'll be implementing few experiments in terms of your programs and then two assignments and one mini project. Fine. So for this to start up, हमें सबसे पहले क्या करना है कि you need to have Python on your machine. And then apart from Python, you need to have one editor program where we can do the coding part. Okay, so Python is basically a interpreter जो कि हम यूज करेंगे हमारे Python syntax या कोड को इंटरप्रीट करने के लिए. And then editor will be using to code out. Okay, coding करने के लिए हम editor use करेंगे. Now there are the different combinations which people generally use as per their choice. So, for example, one combination is in the form of something called as anaconda. तो एक anaconda जो होता है वो एक complete package होता है which provides you Python and which provides you some interpreter in the form of spider and so on with few add-on libraries also. So that is one way of working on Python. Other way is like you can install Python on your machine and then you can make use of any third party editor program. अब ये जो second way है by which you can install first Python on your machine and then you can either make use of Sublime text editor or Atom text editor or you can make use of VS Code. So it is as per your choice what you want to go for. Fine. Now we'll be going with the second option initially. Then if required, then we can think of going for the first option, that is installing the Anaconda package. But I would prefer to go with the second option initially. So you can install Python on your machine and then independently you can make use of any editor program. Okay? And for me, the editor of choice is VS Code, जो कि हमने लास्ट सेमिस्टर में डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज किया था. तो द सेम एडिटर प्रोग्राम वी कैन मेक यूज ऑफ. तो विल बी मेकिंग यूज ऑफ VS कोड. तो मैं VS कोड यूज करूंगा. आप लोग के पास अभी भी चॉइस है एंड आई रिकमेंड यू टू गो विद द VS कोड itself. And you can go with the VS code, but you need to have Python installed on your machine. Now to install the Python, what you need to do? Morning में जो हमने देखा था, for the complete reference for Python, where you need to go, python.org. Python interpreter से लेके Python documentation, Python updates, everything you will get on this web portal. So on python.org, you can go directly to the downloads and there you can directly go on this. So you can download and install the Python package for you people. As per your machine, it will auto detect based on your operating system. It will give you an option. So it is available for Windows, for Mac OS, for the Linux also. So you can download it as per your operating system and then you can install it. Now, I am assuming and I am hoping that everyone must have installed Python on your machine. Next important thing is what? क्या during lab का ये जो lab वाला जो part है, I want each one of you to work along with me. ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाली ये वीडियो देख रहे हैं और ये सेशन देखते देखते आप सब कुछ सीख लोगे. You need to work along with me. Fine. अब जिनके भी पास लैपटॉप हो या जिनके भी पास डेस्कटॉप हो, सो आई रिक्वेस्ट देम क्या या तो लैपटॉप के ऊपर सेशन देखते देखते कोडिंग करे या तो मोबाइल साइड में रखे, मोबाइल के ऊपर आपका सेशन चलता रहे और साथ में आपके लैपटॉप के ऊपर आपकी कोडिंग होती रहो या आपके डेस्कटॉप के ऊपर आपकी कोडिंग होती रहे. नाउ दिस इज रिक्वायर्ड. आई रिपीट, दिस इज रिक्वायर्ड. अगर आप इस तरीके से साथ में करते चलेंगे मेरे, तो आपके प्रोग्राम भी साथ में होते रहेंगे. आपके एंड पे कुछ भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है, सो वी कैन थिंक ऑफ दैट प्रॉब्लम, वी कैन डिस्कस अबाउट दैट प्रॉब्लम एंड वी कैन कम आउट विद सम सॉल्यूशन. ओके, नाउ दिस इज रिक्वायर्ड. हैविंग सेड दैट, ऐसे कुछ भी स्टूडेंट अगर है जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, क्या दे डू नॉट हैव लैपटॉप, दे डू नॉट हैव डेस्कटॉप एंड दे कैन नॉट वर्क ऑन इट, no issues at all. What you can do, you can simply see the entire session. Okay, आप पूरे सेशन को अच्छे से देखो, उसको अच्छे से समझो. उसमें आपको कहाँ पर भी डाउट आ रहा है आप वो डाउट पूछ लो.
और बाद में आप क्या कर सकते हो कि आप कोई भी ऑनलाइन जो पाइथन इंटरप्रेटर टूल्स है, आप ऑनलाइन टूल यूज करके अपनी कोडिंग का काम कंप्लीट कर सकते हो। और एल्स वीकली और या फिर 15 डेज में या मंथली भी एक बार अगर आप कॉलेज विजिट कर लो तो आपके पास लैब फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल है। यू कैन सिट ऑन अ मशीन फॉर अ कंप्लीट डे एंड इन अ कंप्लीट डे यू कैन इजीली कंप्लीट मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स जो कि आपके हो चुके रहे। तो 3-4 एक्सपेरिमेंट अगर आपके हो जाते हैं तो आप एक बार लैब में, एक बार कॉलेज आके विजिट करके कॉलेज, आप लैब में एक दिन बैठ के अपने सभी काम कंप्लीट कर सकते हैं। इनफैक्ट फॉर ऑल द courses, for all the labs. Okay, but what I need to have, yeah, you should be doing along with me. That is a prerequisite. Okay, so is Python installed for all of you? जितने भी लोग अभी लैपटॉप डेस्कटॉप लेके बैठे हैं, अगर नहीं लेके बैठे हैं तो उन्होंने इमीडिएटली पहले चालू करना है, स्टार्ट करना है और मैं साथ साथ में ही काम करना है। तो may I हेलो know सर। is Python installed for all the machines? सब Yes, sir. Keep on. Just keep on हेलो going. सर। Okay. Yes. Sir, for VS Code we have to install some extension. For VS Code, you have to install what? एक्सटेंशन हाँ, इंस्टॉल करना extension पड़ेगा। इंस्टॉल कर लो, that would be great. अगर VS Code आपके पास है और Python का extension आप इंस्टॉल कर सकते हो, that would be great. सर कौन सा So एक्सटेंशन VS करना Code है? can understand. हाँ, कैन यू शो विच एक्सटेंशन? yes, I will do. Okay, so what I am hoping that you must have now install Python on your machine. अगर किसके पास पहले इंस्टॉल भी नहीं था तो वो इस तरीके से अभी इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है? So that is being done. Now the next part is your VS Code. Now I hope that VS Code must be installed on your machine. लास्ट सेमिस्टर से हम VS Code यूज कर रहे, तो आई एम श्योर क्या आपके पास VS Code होगा। अगर नहीं है तो इमीडिएटली इंस्टॉल कर लो। अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो VS Code इज आल्सो फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट and it is for your kind information free and open source software from Microsoft. So you can install it on your machine. Once you install it on your machine, what you need to do, you can सर्च। यहाँ पर तुम्हें सर्च करना है अगर आपको पाइथन का एक्सटेंशन कोई है। लेट्स सी दैट। प्लीज गो टू दिस। हाँ, दिस इज द extension tab, not this one. This one will be a search for your local machine. Sorry for that. So this is your extension tab. ये extension tab पे जाओ आप और यहाँ पर आपने टाइप करना है पाइथन, ठीक है? तो पाइथन के देखो अलग अलग यहाँ पे एक्सटेंशन है। पाइथन फॉर VS कोड इज ऑलरेडी इंस्टॉल ऑन माय मशीन। देन इंटेलिसेंस का पाइलांस है, वो भी इंस्टॉल है, बट यू नीड टू हैव दिस पाइथन फॉर VS कोड। ओके, तो पाइथन फॉर VS कोड जो एक्सटेंशन है ये आप इंस्टॉल कर सकते हो। मल्टीपल एक्सटेंशन आर देयर बट वन एक्सटेंशन विल डू। Python extension pack version 1.7.0 popular Visual Studio Code extension for Python. Let me install this also. Again, so okay, fine. It has been installed, so you can install the required extension for your Python. What I have installed, Python extension pack. Okay, that's enough. और कुछ ज्यादा की जरूरत नहीं है हमको। Now after this, what I will be doing, अगर आपके पास Python installed है, so what you can do, I will go to my terminal. मैं यहीं पे टर्मिनल स्टार्ट करता हूँ। आई वोंट बी स्टार्टिंग अनदर टर्मिनल।
So on my terminal, anywhere I can just hit for Python. If I have installed Python on my machine, so I can give a command Python on a command line. ठीक है, तो आपका कमांड कॉम आप स्टार्ट करो, बट आई वुड बी रिकमेंडिंग यू कि विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करके वहीं पे जो आपका टर्मिनल का ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन है, या फिर व्यू में टर्मिनल का ऑप्शन आता है तो ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन स्टार्ट करके आप टर्मिनल स्टार्ट करो यहीं पर विजुअल स्टूडियो कोड में ही, और यहीं पे आप कमांड डाल दो पाइथन. So when you type out a command Python and when you press an enter key, so it starts interpreter, or you can say uh, command prompt for Python itself. So अभी आप Python में ही हो. Okay. Now Python is an interpreter, as I said you. So let me show you some basics of Python. I go to documentation, I go to Python docs, and here I will go to tutorial. Okay. Now into the tutorial part, as you can see, Python is an easy to learn, powerful programming language. It has efficient, high-level data structures and a simple but effective approach to object-oriented programming. Python's elegant syntax and dynamic typing, together with its interpreted nature, not compiled nature, interpreted nature, make it an ideal language for scripting and rapid application development in many areas on most platforms. Okay, so this is a very basic thing about Python. Python is an easy to learn, powerful programming language. It has efficient, high level data structures. जब हम उसके डेटा स्ट्रक्चर लर्न करेंगे तब हमको ये बात समझ में आएंगी. एंड अ वेरी सिंपल बट इफेक्टिव अप्रोच टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी इसमें काफी आसानी से हो जाती है. Python's elegant syntax and dynamic typing, the data types, it takes dynamically. Together with its interpreted nature, it's an interpreter programming language. I repeat, it's an interpreted programming language and not a compiled programming language. Make it an ideal language for scripting and rapid application development in many, many areas on most of the platforms. Okay. The Python interpreter and extensive standard library are freely available in source or binary form for all major platforms on the Python website, python.org, and may be freely distributed also. The same site also contains distributions of and pointers to many free third-party Python modules, programs, and tools, and additional documentation. The Python interpreter is really easily extended with new functions and data types implemented in C or C++. Python is also suitable as an extension language for customized applications. So on. Then using Python as a calculator, numbers, strings, list. Then first steps towards programming, an informal introduction to Python. Okay, so very basics about Python, and I go back to this, and now I come back to my Visual Studio Code, and here I say this is a Python interpreter or a Python command prompt, and here on this I can do some basic programming. यहाँ पर हम कुछ basic programming कर सकते हैं, ठीक है? And if you want to create a script, अगर तुमको Python की script बनाना है, Python का प्रोग्राम बनाना है, तो that time we make use of editor. वो टाइम पे फिर हम editor प्रोग्राम को यूज करते हैं, ठीक है? For example, if I want to make use of some variables and I can do some basic calculation, even if I want to make use of looping, तो वो सब चीजें हम यहाँ पर भी कर सकते हैं. Let me give you an example. I have a variable I and I want to initialize this variable with a value 10. So I can simply write I equals to 10. देखो गौर से मैं क्या कर रहा हूँ, I equals to 10. अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये I नाम का एक वेरिएबल बना और उसका वैल्यू सेट हो गई 10. उसको क्या वैल्यू सेट हो गई 10 की. अगर यही काम मुझे C में, C++ में या जावा में करना होता
तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता i इक्वल्स टू 10? यस, नो सर, तो नो उधर सर। से कोड लिखने पड़ता है बस। उसका नहीं डेटा सर, टाइप लिखना पड़ता, ठीक है, हमें इंट आई लिखना पड़ता या फ्लोट आई लिखना पड़ता। तो फॉर अदर कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और इवन इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस एंड जावा, यू नीड टू फर्स्ट डिफाइन द टाइप ऑफ अ वेरिएबल। आपको वेरिएबल का टाइप डिफाइन करना होता है, तो इसके बाद ही में आप वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन पाइथन इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट। You can make use of this built-in data types directly without declaring their variable. So, for example, मैंने जैसे लिखा I equals to 10, Python understood that there is a variable I which has a data 10, ठीक है। So, depending upon this data type, it internally manages I to be of type integer. Please listen my words carefully. It internally manages and makes I as a variable of type integer. ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सभी का हुआ है, सबको पता है कि क्लास क्या होती है, सबको पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, फाइन। और सबको पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो मुझे जल्दी से बताओ कि क्लास क्या होती है, फास्ट। यस प्लीज, टेम्पलेट और लेट्स मेक ब्लूप्रिंट। दिस इंटरेस्टिंग। नदर फिर से बोलो बेटा, आई कुड नॉट। एक टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट रहता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो यूज होता है। एक टेम्पलेट होता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ओके ओके, गुड अटेम्प्ट। एनीबॉडी एल्स? किसी और को कुछ बताना है? यस प्लीज। व्हाट इज द क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? चलो जल्दी जल्दी, तो डू नॉट स्टॉप ब्लूप्रिंट रहती योरसेल्फ। है। सॉरी, ब्लूप्रिंट क्लास जो होती है ब्लूप्रिंट होती है। ब्लूप्रिंट होती है, गुड डेफिनेशन, गुड डेफिनेशन। और कुछ? चलो लेट्स सी के ये क्या बोलता। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, गुड। क्लासेस, तो इन दिस रेफरेंस, ये पाइथन के रेफरेंस में क्या बता रहा है? क्लासेस प्रोवाइड ए मींस ऑफ बंडलिंग डेटा एंड फंक्शनलिटी टुगेदर। वाह क्या प्यारा डेफिनेशन। Creating a new class creates a new type of object, allowing new instances of that type to be made. Each class instance can have attributes attached to it for maintaining its state. Class instances can also have methods for modifying its state. ठीक है, थोड़ी सी हाई लेवल की बातें हो गई, लेकिन काफी सिंपल है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। क्या बता रहा है ये? क्लासेस प्रोवाइड्स अ मीन ऑफ बंडलिंग डेटा एंड फंक्शनलिटी टुगेदर। ठीक है, क्लास में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम डेटा और जो डेटा के ऊपर जो फंक्शंस काम करने वाले हैं, इन दोनों का बंडल बना देते, इन दोनों को हम एनकैप्सुलेट कर देते, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पहले तक जो अलग अलग स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग है, वेदर इट इज फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और योर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और इवन स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उन प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि डेटा का काम करने वाले फंक्शन ये अलग अलग होते थे। ठीक है, वो एक ग्रुप में या एक पैकेज में या एक बंडल में नहीं आते। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या किया गया, क्या ये सोचा गया कि भाई व्हाई टू कीप द डेटा एंड देन द फंक्शंस व्हिच आर वर्किंग ऑन दिस डेटा टुगेदर सेपरेट, व्हाई नॉट टू ग्रुप देम टुगेदर। क्यों ना हम डेटा और डेटा के ऊपर जितने भी फंक्शंस काम करने वाले हैं, इन सबको एक साथ में मिला ले और इन सबको एनकैप्सुलेट करके कोई एक चीज बनाए। ठीक है, वो जो एक बंडल बना इनको एनकैप्सुलेट करके, उस बंडल को बोला गया क्लास। ठीक है, और ये जो एक बंडल है, ये जो एक ब्लूप्रिंट है, ये जो एक टेम्पलेट है जिसको हम क्लास बोल रहे हैं, ये एक डिस्क्रिप्शन हुआ, ये एक डेटा टाइप हुआ, एक तरीका का क्या हुआ, ये डेटा टाइप हुआ। अब इस टाइप के जो आप वेरिएबल्स डिफाइन करोगे, वो हर एक वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वो हर एक वेरिएबल जो है एक एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो वन वेरिएबल of this class type will be acting as one object। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जबान में हम इन वेरिएबल्स को कहते हैं इंस्टेंस। इनको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंस।
तो जब भी किसी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होता है या ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, so we say that the class has been instantiated. What we say? A class has been instantiated. Fine. Now in Python, almost everything is implemented in the form of classes or in the form of object-oriented programming. I repeat, in Python, whatever facilities you have, whatever built-in types you have, those are implemented using object-oriented programming only. So it means that कि जितने भी built-in types है, जितने भी available data types है, भले basic हो या advanced हो, वो सभी implemented है in the form of class. I repeat, they are implemented in the form of classes. Fine. I come back to my editor, and here before proceeding further, let me know क्या अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे हो सबके समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। बाकी जो यस यस Yes. माइक ऑन करके नहीं बोल पा रहे उन्होंने टाइप करते जाना है प्लीज। ओके, तो मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था आपसे कि जो क्लास है वो डेटा और डेटा के ऊपर काम करने वाले सभी फंक्शंस को एक साथ में बंडल किया जाता है, एक साथ में कैप्सूल में डाला जाता है, एनकैप्सुलेट किया जाता है, और इस डिस्क्रिप्शन को, इस टेम्पलेट को बोला जाता है क्लास। अब ये जो टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट के जब जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, डिफाइन करोगे, तो हर वेरिएबल बनता है इस टेम्पलेट का एक ऑब्जेक्ट। क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। In Python, almost all the data types are implemented in the form of object-oriented programming as classes. It means that क्या integer की एक क्लास है, float की एक क्लास है, string की एक क्लास है, list की एक क्लास है, tuple की एक क्लास है, and so on. जितने भी डेटा टाइप, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स पाइथन के अंदर अवेलेबल है, सबके लिए क्लासेस है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैंने i इक्वल्स टू 10 लिखा और पाइथन ने इंटरनली ये समझ लिया कि भाई ये जो 10 है ये इंटीजर टाइप डेटा है, तो ये जो i है इसका टाइप इंटीजर होना चाहिए, और पाइथन ने अगर इंटरनली i को इंटीजर बना चुका और मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई i का क्या टाइप है और क्या होगा टाइप, तो i जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ अ इंटीजर क्लास बन चुका होगा। i जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटीजर क्लास बन चुका होगा। नाउ टू check this, in Python we have one function you can say which is called as type. We have one function called as type. Type करो, type word को type करो, और parenthesis में जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी वेरिएबल आपको पास करना है इसे वो पास करो। टाइप क्या बताएगा आपको? टाइप ये बताएगा कि इस वेरिएबल का, इस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, इस वेरिएबल का या इस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है। लेट्स ट्राई दैट। So I say type in bracket I, and then I hit an enter key. I get this output. Okay, हमको लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में कुछ मिला। क्या मिला? क्लास स्पेस सिंगल कोट इंट। क्या मिला? क्लास स्पेस सिंगल कोट इंट। It means that this I is an object of a class int. Int is a class which is defined inside Python interpreter. Inside my Python interpreter, there is a class called int, and I is automatically being made as an object of a class int depending on its type. Okay. Now if I say I equals to 25.5, I change the data of I. And I change not only the data of I, but I also change the type of data in I. I repeat, I am changing the type of data in I. I am making it as a floating point number. So when I say I equals to 25.5, Python will not object. Python नहीं बोलेगा अरे भाई यार ये तो तुमने पहले भी बताया नहीं था मुझे कि I का टाइप क्या है। मैंने फाइंड आउट किया आई का टाइप क्या है, इंटीजर है, तो मैंने उसको आई इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, और अब तुम यार खुद से चेंज कर दे दो, तुम खुद से आई के अंदर फ्लोटिंग वैल्यू डाल रहे हो, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम। नाउ इफ आई टाइप चेक द टाइप ऑफ आई, so now Python says that
Do not worry, I have converted it to float. I have converted it to float. ठीक है? Now this I is an object of a float class. Again, if I say I equals to in double quotes AIKTC, I सर in एक double क्वेश्चन था quotes, sorry, सर, सेमीकोलन नहीं लगाएंगे? not required. आसान होगी ना आपकी लाइफ. पाइथन इज अच्छा, अ हाँ। वेरी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यहाँ पर वो बोलता है कि सेमीकोलन क्यों चाहिए भाई. उन लैंग्वेजेस में सेमीकोलन था, वो सेमीकोलन से बड़ा प्रॉब्लम होता था सबको. अभी सेमीकोलन भी नहीं डालेंगे, कोलन भी नहीं डालेंगे, डॉट भी नहीं डालेंगे. ठीक है, आपका स्टेटमेंट खत्म हुआ, खाली एंटर मारो. आपका स्टेटमेंट खत्म हुआ, एंटर मारो. सी क्या बोलता है, स्टेटमेंट खत्म हुआ तो सेमीकोलन डालो. सी प्लस प्लस भी बोलता है स्टेटमेंट खत्म हुआ तो सेमीकोलन डालो. जावा ऑल्सो से स्टेटमेंट खत्म हुआ तो सेमीकोलन डालो. पाइथन बोलता है स्टेटमेंट खत्म हुआ कुछ भी मत करो, खाली एंटर मार दो. आप एंटर मार देंगे, आई विल अंडरस्टैंड कि आपका स्टेटमेंट खत्म हो चुका. ठीक है. So I equals to in double quotes I put up a data AIKTC. I hit an enter key and now I check the type of I. तो अभी भी पाइथन ने ये नहीं बोला यार अभी तो तुमने एकदम ही बवाल कर दी, अभी तो तुमने एकदम उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी है. पहले इंड को मैंने फ्लोट भी कन्वर्ट कर दिया था, अब तो एकदम स्ट्रिंग वैल्यू डाले. सो लेट्स सी नाउ व्हाट द पाइथन सेज. Python says no issue. Now I have converted I to be an object of a str class. So str is a string class, float is a float class, int is the int class. Okay, str is a string class, float is for the float class, and int is for the integer class. ठीक है. अभी अगर मैं I की वैल्यू मुझे डिस्प्ले करना, I will simply type I and I will hit an enter key. तो I की वैल्यू डिस्प्ले हो गई AIKT. I के अंदर अगर मैं कुछ और वैल्यू डाल दूं 25.678 और मैं I टाइप करके खाली एंटर की प्रेस करता हूँ, I की वैल्यू आ जाए. I के अंदर मैं कोई इंटीजर वैल्यू डाल दूं से 100 और I की वैल्यू मुझे डिस्प्ले करना, I में टाइप करके एंटर प्रेस करता हूँ, 100 डिस्प्ले हो गया. There is another way of displaying the variable or the data is by using the print function. Print, not print f. C में print f है, print formatted. C++ में print f है. ओके. और जावा में आपके system.out. So sir, the latest value of I. Yes, the latest value of I will be considered. The latest value of I will be considered. You are right. So print, not printf, only print, parenthesis, and if I want to display the value of I will simply say I. No semicolon again, and now it is displaying the value of I. अगर मुझे उसके साथ में कोई कांस्टेंट स्ट्रिंग भी डिस्प्ले करना है, आई कैन से I इक्वल्स टू एंड देन कॉमा. देखो यहाँ पर I इक्वल्स टू और बस कॉमा, कुछ भी नहीं, और उसके बाद में वेरिएबल का नाम. तो I इक्वल्स टू 100 आ गया. I इक्वल्स टू के बाद में एक स्पेस आ गई, फिर 100 आ गया. ठीक है. तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मुझे डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. C++ में यू नीड टू स्पेसिफाई. तो आपका फॉर्मेट स्पेसिफाई लगता था %d %f. Here you did not have to. I के अंदर मैं अगर स्ट्रिंग वैल्यू डाल दूं AIKTC and I give up this, so it will say I equals to AIKTC. ठीक है. So it's that way. It is as simple as that. Are you all with me? अभी तक के किसी को कोई प्रॉब्लम, सर कोई क्वेश्चन? अगर मेरे को आउटपुट में इक्वल के बाद स्पेस नहीं चाहिए तो? हाँ, गुड. अगर इक्वल के बाद में स्पेस नहीं चाहिए, जो स्पेस आया ना, ये स्पेस अगर नहीं चाहिए तो एक ऑप्शन है, लेट मी चेक दैट. मैं यहाँ पर डालूंगा कॉमा एंड देन के बाद सेपरेटर, SEP, सेपरेटर इक्वल्स टू नथिंग. गुड, डन. ठीक है. सेप बोल के एक आर्ग्यूमेंट है प्रिंट फंक्शन का. तो वो क्या करता है कि आपके जो सेपरेटर है, ये मेरी कांस्टेंट स्ट्रिंग है और ये मेरा डेटा है. ठीक है. तो कांस्टेंट स्ट्रिंग और डेटा को जो सेपरेट करने वाली जो चीज है वो है सेपरेटर. फाइन. तो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर क्या होता है, सिंगल स्पेस होता है. बाय डिफॉल्ट सेपरेटर क्या होता है, सिंगल स्पेस होता है.
नाउ पाइथन गिव यू फ्रीडम कि आपको आपका सेपरेटर क्या सेट करना है, आप सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेपरेटर इक्वल्स टू कुछ भी नहीं डाला, डबल कोट्स डाल दिया उसका, तो मैंने सिंगल स्पेस भी निकाल दिया। अगर मुझे सेपरेटर कुछ और डालना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सेपरेटर डालना है कोलन, देखो मैंने कोलन डाल दिया सेपरेटर, ठीक है। तो अब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये प्रिंट स्टेटमेंट के लिए सेपरेटर कोलन रहेगा, खाली वो एक प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ पे ये स्पेसिफिक प्रिंट स्टेटमेंट के लिए सेपरेटर कुछ नहीं था, हमने निकाल दिया। बाय डिफॉल्ट हर प्रिंट स्टेटमेंट के लिए सेपरेटर क्या आता है, सिंगल स्पेस आता है। अब मैंने यहाँ पर कोलन डाला हूँ, लेट्स सी, नाउ सी, तो इक्वल टू आई इक्वल टू, ये हमारी कांस्टेंट स्ट्रिंग है, फिर इसके बाद में कोलन आया सेपरेटर, फिर इसके बाद में ए आई के टी सी, ये जो आई की वैल्यू है वो आई की वैल्यू। Are you getting it? So that can be done with the help of an argument called SEP, SEP। इसी तरीके से जो प्रिंट होने के बाद में जो न्यू लाइन आती है, जैसा हम ये डिस्प्ले होने के बाद में हम न्यू लाइन पे आ गए ना, तो बाय डिफॉल्ट वो न्यू लाइन होती है। अगर आपको उसको चेंज करना है वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आर्ग्यूमेंट का नाम है एंड एल। तो एंड एल ही है या एंड है, लेट मी चेक। इक्वल्स टू, इन सिंगल कोट आई राइट टैब स्पेस, no it is end, not end। ओके, ठीक है। देख रहे हो आप, कमांड प्रॉम्प्ट का पर आया, टैब स्पेस के बाद में आ गया, नहीं तो नेक्स्ट लाइन पे आ रहा था। अगर मैं टैब स्पेस भी निकाल दूं तो नेक्स्ट जो कमांड प्रॉम्प्ट में आएगा तो वो स्पेस भी नहीं छूटेंगी यहाँ पर। डायरेक्टली इतना डिस्प्ले करने के बाद में डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट आ जाए, ठीक है। लेट मी शो यू दैट। मैंने अगर ये भी हटा दिया टैब स्पेस और कुछ भी नहीं रख रहा हूँ, तो देखो आउटपुट आया हमारा इतना, और इसके इमीडिएटली बाद में हमारा ये कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। फाइन, तो दिस इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट एंड। अब मैं फिर से यही डालूं और यहाँ पर 2 लाइन डाल दूं, तो 2 लाइन, ठीक है। इसके बाद में 1 लाइन आ गई, फिर एक ब्लैंक लाइन छुटी, फिर इसके बाद में हमारा। तो दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल कि आपको भाई प्रिंट के बाद में कितनी लाइन छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। अब आपको जो सेपरेटर है वो क्या सेट करना है, तो आपका जो कांस्टेंट है, फिर उसके बाद में जो आपका डेटा है उसके बीच में क्या है, तो दैट यू कैन कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ सेप आर्ग्यूमेंट एंड एंड आर्ग्यूमेंट। ओके, अगर आप ये दोनों नहीं डालते हो तो डिफॉल्ट वैल्यूज क्या आएंगी उसकी, सेप की डिफॉल्ट वैल्यू है सिंगल स्पेस और एन की डिफॉल्ट वैल्यू है 1 न्यू लाइन, ठीक है। तो सैप की डिफॉल्ट वैल्यू बनी है सिंगल स्पेस और एन की डिफॉल्ट वैल्यू है 1 न्यू लाइन। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस सर। गुड। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, देखो अब मैं एक आपको खाली वेरिएबल, एक एक वेरिएबल बता रहा हूँ, और फिर इसके बाद में मैंने आपको टाइप बताया, और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कॉल्ड आईडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। आईडी जो फंक्शन है ना, वो क्या करता है, आईडी टाइप करो और फिर पैरेंथेसिस में आप जो भी आपका ऑब्जेक्ट है या जो भी वेरिएबल है उसका नाम दे दो। नाउ दिस हेलो सर। आईडी, यस, सर पूरा कोड इधर ही करेंगे या वीएस कोड में करेंगे? व्यू कोड में करेंगे बेटा, वीएस कोड में ही करेंगे पूरा। खाली मैं यहाँ पर थोड़ी कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ, इसके बाद में हम लोग सीधा उस पर जाऊंगा। मैं इस ओके पे सर। इसके लिए बता रहा हूँ क्या इमीडिएटली मुझे आउटपुट यहाँ पर दिखाना। वीएस कोड में क्या होगा कि अब तुम पूरा कोड टाइप करो, फिर आप उसको टर्मिनल पे जाओ, फिर इसको इंटरप्रीट करो, फिर आउटपुट आएगा। यहाँ पर क्या फटाफट एक एक लाइन खाली बताना है अपने को, तो फटाफट हम लोग यहीं पे देख सकते हैं। तो आईडी एंड देन इन पैरेंथेसिस आई, इसका क्या फायदा है, इट्स अ वेरी गुड फंक्शन विच गिव्स यू द लोकेशन, okay, the location of that object in the memory or the location of the variable in the memory। so I hit an enter key and I get the address कि भाई ये जो वेरिएबल है कहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो वेरिएबल है ये कहाँ पर प्रेजेंट है। फाइन, अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताता हूँ। आई एक वेरिएबल हो गया, अब मैं जे एक वेरिएबल लेता हूँ दूसरा से 20, एंड देन आई वांट टू चेक द एड्रेस ऑफ जे। ठीक है, जे का एक अलग एड्रेस है, बिल्कुल अलग एड्रेस है, होना भी चाहिए। आई एक अलग वेरिएबल है, जे एक अलग वेरिएबल है। वैसे एक और वेरिएबल लेता हूँ के, ठीक है, इसके अंदर भी कुछ वैल्यू डाल देता हूँ। चलो के का एड्रेस देखते हैं अब।
के भी एक अलग वेरिएबल है, उसका भी अलग लोकेशन होना चाहिए। यस, उसका भी अलग लोकेशन है। लास्ट में देखो 888 है, यहाँ पर लास्ट में 728 है, और ये तो पूरा अलग लोकेशन। अब क्या करता हो, आई जे के एल, एल एक वेरिएबल लेता हो, इक्वल्स टू वैल्यू डालता हो 20, ठीक है। और अब एल का एड्रेस देखो, प्लीज चेक द एड्रेस ऑफ एल विद द addresses of other variables. Are you getting any same address? सर यस जे सर, L और J। जे और एल। J और L कैसे क्या सेम एड्रेस मिल रहा है? सर अलग अलग। equal to दोनों 20 में वैल्यू सेम है इसलिए। सर ऐसे वैल्यू सेम है सर। वेरी गुड, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। पाइथन सेज दैट कि जहां जहां डेटा सेम है वहां पर वेरिएबल क्यों अलग अलग करते हो? पाइथन सेज that Python is responsible to manage the memory. Python will manage your memory. You only need to worry about your data. You only need to worry about your variables. How the variables are getting stored in the memory is all about Python memory management. Now, Python maintains or manages the memory quite efficiently, as we can see from this point, कि जहां जहां data same है, अगर आपने वो अलग अलग वेरिएबल में भी रखा है तो पाइथन बोलता है जब डेटा सेम है तो उसके लिए अलग अलग लोकेशन क्यों? एक लोकेशन पे वो डेटा डालो और अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है, जो अलग अलग वेरिएबल है, वो उसी को पॉइंट करेंगे। डन। नो नीड टू क्रिएट मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस। तो since the data is same and as far as the data is same, your addresses will remain same, ठीक है। तो L के अंदर जब तक I J और L का कंटेंट सेम है तब तक के उनके एड्रेसेस सेम है। आई रिपीट, जब तक J और L या वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट के कंटेंट सेम है तब तक उनके एड्रेसेस सेम है। अगर कंटेंट अलग हो गया तो एड्रेसेस भी अलग हो जाएंगे। लेट्स चेक। इफ आई से L इक्वल्स टू 50, L को हम पहले हमने 20 रखा था, अब L इक्वल्स टू 50 कर देते हम। हमने L का कंटेंट चेंज कर दिया, अब J का 20 है, L का 50 है। लेट्स सी द एड्रेस ऑफ L। इज इट सेम टू द एड्रेस ऑफ J? no sir नो सर। It is different, and it has to be different because the data is different. And this is internally done by Python. This is internally managed by Python. But as a programmer, we should know what is happening. How it is happening, that is something like if we are a very good programmer, then we'll be knowing. That's the next question. But the first question is that being a user of the programming language, being a programmer, I should know what is being done. ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर क्या रही है मेरे डेटा के साथ में, उसको मैनेज कैसे करती है। The same goes for other types of data. For example, say string. So if I got a variable x and I put up the same data AIKTC, so let me check the address of x. It says 111999840, and for I also it is 111999840. Okay, and if I change the content of x, for example, if I say x equals to CO, then if I see the address of x, then I come to know that it's a different address, 112018888. Okay, and if I change the content of x again, I say I am from CO. Okay, and I check the address. So if you see now, so the address is again changing. Now the question should be कि भाई यहाँ पर x को हमने एक वैल्यू डाली CO, x का हमने एड्रेस चेक किया तो ये एड्रेस आया, फिर से हमने x की सेम ऑब्जेक्ट की हमने वैल्यू चेंज की, हमने बोला कि अब x की वैल्यू ये है
और हमने x का एड्रेस अगर चेक किया तो अभी हमें दूसरा एड्रेस मिल रहा है. Why it is happening and why it is happening this way? Why not the same address is being used? This is because in Python there are few data structures which are called as mutable, and there are few data structures which are called as immutable. Okay? There are few data types and data structures which are called as mutable, and there are few data types of data structures which are called immutable. Okay? Now, can you tell me the meaning of mutable and immutable? What do you mean by mutable? सर म्यूटेबल मतलब चेंज कर सकते हैं और इम्यूटेबल में कोई चीज चेंज नहीं कर सकते. Good. Mutable का मतलब होता है changeable, which can be changed. And immutable का मतलब होता है उसका opposite, unchangeable. You cannot change it. You cannot change it. ठीक है? So mutable is something which can be changed, and immutable is something which cannot be changed. Now in Python, string data type or string data structure is immutable. Listen my words carefully. String data type or string data is immutable. Immutable का मतलब होता है जिसको आप change नहीं कर सकते. I repeat, जिसको आप change नहीं कर सकते. इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने x के अंदर वैल्यू डाली CO, तो अब आप ये CO जो आपने x में डाला ये आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है? लेकिन आपको ऐसा लग रहा है फ्रॉम प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने फिर से लिखा x इक्वल्स टू आई एम फ्रॉम CO. तो अब पाइथन ने क्या किया कि पाइथन बोल रहा है स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, यू कैन नॉट चेंज इट. फाइन. नाउ सिंस यू कैन नॉट चेंज इट and you are trying to change it, so what Python would do, a Python would create a new object for you. Python would create new object for you, and what Python is understanding कि भाई आपने इस ऑब्जेक्ट का नाम भी x लिखा है और आपने इसको चेंज करने की कोशिश की, मतलब कि आपको x की पुरानी वैल्यू नहीं चाहिए, तो Python will destroy this object and Python will create a new object with a new value. And since a new object is created with a new value, that's why a new address will come to it. That's why a new address will come to it. All of you has to be with me. Please listen carefully. A new object is created by Python for the new data, and so it will get a new address. पुराना जो ऑब्जेक्ट था वो समझो डिस्ट्रॉय हो गया. ओके, वो फ्री हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया. फाइन. न्यू ऑब्जेक्ट बना, न्यू ऑब्जेक्ट बन के उसको वैल्यू सेट हुई और उसको न्यू एड्रेस मिला. Why? Because it's a immutable data type. It's a immutable data structure. String is a immutable data structure in Python. Now, if I want to check whether the other basic types like int, float, whether these are also immutable, let's see that I equals to 10. So I becomes of type integer. Let's confirm. Okay, it is confirmed. Let's see the address of I. Address of I is this. Let's change the value of I. I put I equals to 20. Okay, I am changing the value of I. The type still remains same. So if I see the type of I, it should say me int. Absolutely fine. Now if I check the address of I, IDI, then I am getting another address. This address was 17732055668, and now this address is 17732055728. Means that integer is also immutable. Integer is also immutable. ठीक है? हमको लगेगा हमने एक बार आई डिक्लेयर किया, उसको 10-12 बार अलग अलग वैल्यूज दी, क्या क्या किया उसके ऊपर, हर बार नया ऑब्जेक्ट क्रिएट, and it will be internally managed by Python. We need not have to worry for it. But now what we are understanding, string is immutable, integer is immutable, and now let me check for float. F equals to 20.5.
ठीक है. Then I check the type of f. It is float. Fine. I check the address of f. I get some address. Then I change the value of f to be say 50.6. I check the address of f. I get a different address. The moment I get a different address after changing the data, it means that it is immutable. Okay? So this is also immutable. Immutable means you cannot change it. आपने उसको एक बार वैल्यू डाली 20.5 तो अब आप उसके अंदर कोई और वैल्यू डाल ही नहीं सकते. The moment you try to give another value, so Python understands that you want to have a new value. So for the new value, it will create a new object with the same name. So the earlier object must have been destroyed. So a new object has been created with a new value and it will get a new address. It will get a new address. So float is also mutable. So what we understood in float and str are immutable data types or immutable data structure. In Python, they are immutable. Are all with me? Are you understanding what we are discussing? पुराना जो भी है C++ Yes, sir. वो सब माइंड से निकाल दो. ठीक है. It's a new Yes, sir. programming language. It's have a very simple way of interaction with the machine. So let's try to understand that way. Okay, so doing सर अगर this, वापस प्रीवियस वैल्यू दिया तो एड्रेस सेम रहेगा. वापस से बेटा फिर से बोलो. सर अगर अभी फॉर एग्जांपल f को वापस 20.5 किया तो उसका एड्रेस जो पहले था वही होगा. No. Let me show you. F equals to 50.5 इसमें लेटेस्ट वैल्यू है. मैं फिर से डालता हूँ 50.6 लेटेस्ट वैल्यू है. मैं फिर से डालता हूँ 50.6 और अब हम उसका एड्रेस चेक करते हैं. तो एड्रेस इज डिफरेंट. Why address is different? What Python says that you cannot change it. एक बार आपने जो सेट कर दी है ना उसके बाद में आप उसको फिर से सेट करने जाते हो तो भले सेम वैल्यू है बट यू आर सेटिंग इट. तो यू आर ट्राइंग टू चेंज इट. जैसे फिर से इक्वल आ गया तो यू आर ट्राइंग टू चेंज इट. भले सेम वैल्यू आप रखो. आर यू गेटिंग इट? भले आप सेम वैल्यू रखो बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू चेंज. ये एड्रेस और 20.5 वाला एड्रेस सेम है. सर इट हैज बीन रीयूज्ड. इट हैज बीन रीयूज्ड. मेमोरी मैनेजमेंट हो रही है बेटा. ये पहले फ्री हो गया था. फिर फ्री होने के बाद में ये यूज हुआ. अब जरूरी नहीं कि हर बार वैसे ही हो. इट्स ऑल डिपेंड अपॉन हाउ पाइथन इज मैनेजिंग योर मेमोरी. समझो आपने एक बार मेलॉक करके आपने मेमोरी एलोकेट की या आपने उसको फ्री कर दिया फिर से आपने मेलॉक यूज किया तो हो सकता है कि सेम लॉक आपको एलोकेट हो सकता है कि सेम एड्रेस आपको एलोकेट. ओके. तो इट डजंट मीन्स दैट कि वो पुराना वाला ही है. इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड एंड द न्यू हैज बीन क्रिएटेड. ओके. ये हो गया कि आप पुराना एड्रेस वापस से मिला. इट इज क्वाइट पॉसिबल. उसमें कोई प्रॉब्लम. Okay, so after doing this, now what we'll be doing? Now we'll be jumping to our editor. हम अपने एडिटर पे जंप करेंगे और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कोडिंग वाला काम. इसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं एक फोल्डर ओपन करूंगा. आप सबको भी यही काम करना है. कैसे करना है आपको? मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेरे डेटा स्ट्रक्चर मेरे फाइल स्ट्रक्चर में मैंने एक 2021 SBLC एक फोल्डर बना लिया हूँ और ये फोल्डर के अंदर मेरा सब 2021 SBLC का डेटा होगा. इसमें एक प्रोग्राम्स का फोल्डर है. इसमें मेरे सब प्रोग्राम जाएंगे. अभी इसमें कुछ भी नहीं है. जैसे जैसे हम प्रोग्राम क्रिएट करते जाएंगे सब प्रोग्राम्स इसमें जाएंगे. ठीक है. नाउ इन माय VS कोड, नाउ बिफोर डूइंग दैट, सिंस आई हैव in my VS code I will be opening a folder and that folder would be my same folder जो कि मैंने अभी आपको बताया है. It is in OSTL 2122 and this one. So I select this folder. I do not double click on it. I simply select it and I go for select folder. ठीक है. अब मैंने फोल्डर ओपन कर दिया और ये फोल्डर के अंदर यहाँ पर देखो आप कुछ भी नहीं. बिफोर प्रोसीडिंग let me do one thing. Let me stop this presentation because I don't want to present my entire screen.
and let me present a window only, जो कि मेरा VS Code है, because I want to see few other things also together. आप लोग के कमेंट्स भी मुझे देखना है और भी कुछ अलग चीजें देखना है. जस्ट अ मिनट. ओके, तो तो अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, आई विल बी क्रिएटिंग अ न्यू फाइल and let me call it file as experiment 1. और experiment 1 में भी आपको मैं मॉर्निंग में बताया था 2 प्रोग्राम्स है, so it can be experiment 11 for the first program और experiment 101, ठीक है, 101. .py should be the extension of a Python script or a Python program. जैसे कि .c should be the extension of C, okay? जावा के लिए आपका .java है, तो पाइथन के लिए हमारा .py. अब ये यहाँ पर ओपन हो गया. नाउ इन पाइथन जैसे हमारा C++ के अंदर और जावा के अंदर कमेंटिंग होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, द सेम वे वी हैव इन पाइथन. तो पाइथन के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट्स कर सकते हो. नाउ इन पाइथन if I want to comment a single line, so I can go for the hash. Okay, so hash means a single line is commented. So I would say first program of SBLC lab. लेकिन ये नेक्स्ट लाइन कमेंट नहीं बनेगी, एक ही लाइन कमेंट बनेगी, ठीक है, नेक्स्ट लाइन कमेंट नहीं बनेगी. अब मुझे अगर मल्टीपल लाइंस को कमेंट बनाना है, so I can go with something called as a triple quote. ओके, ये मेरे ट्रिपल कोट हो गए, ठीक है. 3 बार मैंने सिंगल कोट को प्रेस किया और मैं यहाँ पे एंटर मार दूँ. अब ये दोनों के बीच में जितनी भी लाइंस आएंगी ना, वो सभी लाइंस क्या होंगी, कमेंट्स होंगी आप. ओके, ऑल द लाइंस वुड बी कमेंट. तो आई वुड put everything, say the title of my program would come here, then the author's information at author, और यहाँ पर आपका नाम, आपका रोल नंबर, your name, your roll number, and then your academic year, whatever information you want to put in. And then here you can have the theory part. So the theory about the underlying concept of the program, ठीक है. जो भी हमारा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम की जो भी थियरी है वो भी पूरी यहाँ पर आ सकती है. फाइन. और फिर इसके बाद में यहाँ से हमारी कोडिंग स्टार्ट होती है, यहाँ से हमारी कोडिंग स्टार्ट होती है. आई कैन कीप ऑन सेविंग दिस कोड. इसको मैंने सेव कर लिया. एंड लेट मी सी योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम. So the program 1 is write a Python program to implement comments, data types, expressions, input and output functions. Then second program is write a Python program to implement list, tuple, dictionaries and arrays. Okay. So the second program is about your advanced data structures like list, tuple and dictionaries. And first program is about your comments, data types, input, output. Fine. So let's get back. Okay, so here we need to talk about comment. Comment हमने बताया, सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपको हैश यूज करना है, मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपको ट्रिपल कोड यूज करना है. सो ट्रिपल कोड जो है वो आपका, आप डबल कोड्स भी 3 बार यूज कर सकते हो, सिंगल कोड भी 3 बार यूज कर सकते हो. और इसके बाद में यहाँ से आपकी कोडिंग स्टार्ट होती है. तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल ले लिया i = 10 और फिर मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा i का टाइप. ओके,
and then I can print the address of I. So ID of I, okay, and then I can go for another type, say f equals to 20.5, and then I can print the type of f. Then I can print the address of f. Okay. Then I can go for another type of say string. So I can say in double quote AIKTC directly, and then I can print the type of s, and then I can print the address of s. Okay. Okay, this is fine. I save my code, and then I go to the view. I open my terminal, और थोड़ा इसको बड़ा कर लूँ मैं, यहाँ से इसको थोड़ा चौड़ा कर लूँ मैं, और यहाँ पर देखो, अब फोल्डर ओपन करने का फायदा ये हुआ था कि जो मेरा टर्मिनल आया ना, टर्मिनल भी बाय डिफॉल्ट वहीं पे आ गया, तो टर्मिनल इज ऑल्सो इनटू दैट। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे डालना है पाइथन कमांड स्पेस एंड देन द नेम ऑफ माय फाइल। नेम ऑफ माय फाइल इज exp101.py, exp101.py, और फिर मुझे एंटर मारना है। ठीक है, जैसा मैं एंटर मारता हूँ तो मेरी पूरी जो स्क्रिप्ट है वो इंटरप्रीट होकर एग्जीक्यूट हो जाए। आई रिपीट, मेरी जो स्क्रिप्ट है वो इंटरप्रीट होकर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आउटपुट मिल गया। पहली लाइन का आउटपुट क्या है, क्लास इंट और फिर उसका एड्रेस, फिर दूसरी लाइन में क्लास फ्लोट, टाइप फ्लोट का, फिर उसका एड्रेस, और थर्ड आपका स्ट्रिंग टाइप और उसका एड्रेस। ठीक है, प्रेजेंटेशन जो है वो आउटपुट जो है वो इतना बराबर नहीं आ रहा, हमें समझ भी नहीं आ रहा कि क्या प्रिंट हो रहा है, तो हम ये प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। यहाँ पर हम आई का टाइप बताएंगे, सॉरी उसका डेटा बताएंगे, फिर उसका टाइप बताएंगे। तो व्हाट आई कैन से इन सिंगल कोड, आई वुड से डेटा इक्वल्स टू, मुझे क्या डेटा प्रिंट करना है, आई। ठीक है, आई का कॉन्टेंट, और इसके बाद में मैं कॉमा डालूंगा और फिर मैं डबल कोट्स में डाल दूंगा एंड इट्स टाइप इज डबल कोट कॉमा। ठीक है, देखो मैं प्रिंट स्टेटमेंट क्या बना, डेटा इक्वल टू, और मैं यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पर सेपरेटर स्पेस है, तो इक्वल के बाद में स्पेस आएगी तो एक प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। तो डेटा इक्वल्स टू द डेटा दैट इज आई एंड इट्स टाइप इज दिस टाइप एंड इट्स एड्रेस इज, ये भी मुझे अगर एक ही इसमें लेना है तो मैं यहाँ पर कॉमा डाल दूँ और मैं यहाँ पर डबल कोट्स में अपना कंटेंट डालूँ एंड इट्स लोकेशन और एड्रेस इज, और मैं यहाँ पर कॉमा डाल के यहीं पे आईडी यूज कर लेता हूँ, आईडी ऑफ आई। ठीक है, डन। तो जो सेकंड लाइन है ये मुझे कमेंट में कर सकता हूँ, सेकंड लाइन की जरूरत नहीं है, तो आई वुड से कमेंट इट आउट। ठीक है, तो हमने पहले प्रिंट में ये सब डाला, डेटा इक्वल्स टू आई एंड इट्स टाइप इज टाइप आई एंड इट्स लोकेशन इज आईडी आई। ठीक है, तो पहले हम आई का देखते हैं, एफ और एस को अभी कुछ नहीं करते, लेट्स सी। So I save my code and I come back to my terminal, and here I give command python space my file name and I put an enter. Okay, what I come to know, data equals to 10 and its type is class int and its location is this. So now this is more readable. ये काफी ज्यादा readable है as compared to other display types. So what I will be doing, I will be converting to that type. सबको समझ में आ रहा है? तो ये जो बेसिक, ये जो रॉ प्रिंट स्टेटमेंट है, इसको मैंने थोड़ा सा प्रेजेंटेबल फॉर्म में कर दिया यहाँ पर। तो आई वुड बी नाउ डूइंग व्हाट, द सेम प्रिंटफ स्टेटमेंट, कंट्रोल सी, और मैंने यहाँ पर मारा कंट्रोल वी, और एस के लिए भी मैं इस्तेमाल देता हूँ कंट्रोल वी, और जहां जहां आई है मैं उसको हटा के कर देता हूँ एफ, here also F, here also F, here also F, and here also. Oh, sorry, यहाँ पर सर S चला, एस ना एस
एस और यहाँ पर भी एस। ठीक है, अब ये करने के बाद में मुझे ये स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग इट आउट आई सिंपली डिलीट इट। मैं सीधे इसे डिलीट ही कर देता हूँ। Okay, let me save my code and let me come to the terminal. Let me do this command. Let us use that for you. Okay, so now if you see, so now it is quite good presentation form. So data equals to 10 and its type is class int and its location is this. Data equals to 20.5 and its type is class float and its location is this. Data equals to AI KTC and its type is class string str and its location is this. ठीक है, तो ये काफी अब presentable form में आ गया. Are you all doing it with me? आप सब लोग क्या मेरे साथ में ये काम कर रहे हो? अगर साथ में कर रहे हो तो सर ग्रेट, गुड बेटा. तो आप लोग प्रोग्राम और आपका एक्सपेरिमेंट उसी दिन हो जाएगा ताकि आप सबमिशन भी मुझे कंटिन्यू बेसिस पे करते और मैं सर कंटिन्यू बेसिस पे आपको फुल मार्क्स देते रहूँ, मैक्सिमम मार्क्स देते रहूँ. यस, सर प्रिंट करने के लिए एफ स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हैं ना? प्रिंट करने के लिए एफ स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हैं ना सर? कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं आप फॉर्मेटेड प्रिंटिंग, बट वील स्टार्ट विद सिंपल प्रिंट एंड देन वील सी द फॉर्मेट. ओके, सो सर तो नाउ एक्सपेरिमेंट सबमिट करते टाइम ऐसे ही मतलब यही फॉर्म में देना रहेगा? ऐसे ही कर दो, ऐसे ही कर दो, ऐसे ही कर दो, डेट वुड बी बेटर. यहाँ पर आपको टाइटल डालना है, जो मैं आपसे शेयर करूंगा लिस्ट एक्सपेरिमेंट की, तो उसमें से फर्स्ट प्रोग्राम का आप टाइटल डालोगे. एट ऑथर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आपका नाम आना है, आपका रोल नंबर आना है और एकेडमिक ईयर भी डाल दो. यहाँ पर आपको एकेडमिक ईयर डाल देना है, मैं डायरेक्टली डाल देता हूँ 21-22. ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर थियरी आपको डालना है. तो जो भी टाइटल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कमेंट, बेसिक डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट, ये चार चीजें हम लर्न कर रहे हैं, तो उसकी थियरी आपने डालना है. थियरी जो आप डालोगे, आप थियरी कहाँ से भी ले सकते हो, बट आई वुड रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यू टू, सॉरी, टू टेक द थियरी फ्रॉम python.org. python.org के अलावा और भी काफी साइट्स है, फॉर एग्जाम्पल रियल पाइथन है जहाँ से आप पाइथन की थियरी उठा सकते हो. देन गिग्स फॉर गिग्स है जहाँ पर आपको पाइथन का अच्छा खासा मटेरियल मिल जाएगा, एंड सो ऑन. सो देयर आर मेनी वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द डेटा, but get a good data, get a good source, and that is the data which you are going to learn out. यही डेटा आप अपना प्रिपरेशन के लिए भी यूज करो. ओके, so after this what I will be doing, I will be going for the input output. तो आउटपुट स्टेटमेंट तो आपके सामने है, प्रिंट प्रिंट प्रिंट. इनपुट के लिए to take an input from the user, in Python you have a input function. Okay, so input is a function which is used to get the data from the user from your keyboard. ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट स्ट्रिंग बता देते हैं. तो जनरली देखो C++ में आपको क्या करना पड़ता है, scanf के पहले printf डालना पड़ता है, so that the user can understand कि what you are asking. तो printf में आप डालते हो enter the number, फिर आप scanf में उसको स्कैन करते हो. पाइथन में ये करने की जरूरत नहीं. पाइथन में जो इनपुट फंक्शन है उसी में आपको कांस्टेंट स्ट्रिंग पहले स्पेसिफाई करना है. ठीक है, तो आप कांस्टेंट स्ट्रिंग में जो भी आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है वो आप कांस्टेंट स्ट्रिंग इसमें बता देते. फॉर एग्जांपल आई वुड से एंटर द डेटा. ठीक है, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा वहां पर. और ये जो रिटर्न करेगा डेटा वो आप डायरेक्टली किसी वेरिएबल में ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आई से वेर इक्वल्स टू. ठीक है, तो वैर एक मेरा वेरिएबल हो गया जिसके अंदर जो भी डेटा मैं डाल रहा हूँ वो डेटा जाएगा. फाइन, और इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, ये डेटा को डिस्प्ले कर देता हूँ. तो आई वुड बी यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट एंड आई से scan data is, or the input data is scanned data is. Okay, and here I write the name of my variable where. Done. Let's interpret this code.
see here, enter the data. It is waiting for the input. Input के लिए wait कर रहा है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर data डालता हूँ. For example, मैंने 10 डाला. Then it says scan data is 10. I again interpret it. Enter the data. I say 20.5. And it says scan data is 20.5. Enter the data. I say AIKTC. And it says scan data is AIKT. So now what's happening? क्या मुझे जिस टाइप का डेटा चाहिए मैं उस टाइप का डेटा डाल सकता हूँ, ठीक है? Now what is important to understand? क्या वो जो डेटा हम यहाँ पर डाल रहे हैं, हम जो डेटा स्कैन करके ले रहे हैं, वो डेटा का टाइप क्या है? क्योंकि यहाँ पर तो हम कोई भी टाइप डाल रहे हैं, फाइन? So let's see from here. Scan data is this, और यहीं पे मैं आगे डालता हूँ and sorry, and its type is comma type of variable. Okay, ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करो ना, ये सब मुसीबत हो जाए. So print scan data is where and its type is this. Let's compile our code. Enter the data. I say AIKTC. Here carefully, AIKTC. Scan data is AIKTC and its type is class str. Fine, absolutely fine. It is string. I again interpret it and I say enter the data 10. It says scan data is 10 and its type is class str. Still it is saying class str. Let me try once again. This time I give it floating type data 20.5. It says scan data is 20.5 and its type is class str. It means what? Can you tell me what's happening? इनपुट स्ट्रीम के फॉर्म में देना है. Yes, it means that the input function will always give you a data of type string. I repeat, input function will always return or give you a data of type string. आप किसी भी टाइप का डेटा स्कैन करो, इनपुट फंक्शन आपको स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा रिटर्न करेगा. So if I want to scan a integer type of data, or I want to scan a floating type of data, or I want to scan a data of non-string type, then what should I do? So there is a solution. If you want to enter a data type of integer, then what you need to do कि भाई आपका input जो है वो आपको return करेगा a data of type string. You can convert that data into integer by writing like this, int और पूरे ब्रैकेट के अंदर input, ठीक है? int बाहर हमने लिखा और ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा? input function पूरा, like this. See there carefully. int और ब्रैकेट में हमने लिखा input. तो यहाँ पर क्या किया हमने? कन्वर्ट किया. इनपुट फंक्शन ने हमें डेटा रिटर्न किया, उस डेटा को हमने कन्वर्ट किया इंटीजर में. Now let's see whether this happens or not. I am saving my code and I pull this up. I clear my screen. I execute it and I give a data of type integer 10. And now it says that the scan data is 10 and its type is class integer. तो अपना type conversion हुआ. क्या हुआ? अपना type conversion हुआ. पहले हमारा डेटा जो स्कैन हुआ था वो स्ट्रिंग टाइप का हुआ था. स्ट्रिंग टाइप की जो 10 वैल्यू है वो पास हुई इंट को और इंट ने उसे कन्वर्ट किया इंटीजर. Likewise, when you know that you are going to scan a data of type float, so you can simply convert it to float by writing here float, the name of a class, जो भी क्लास में आपको कन्वर्ट करना है. अब मैं यहाँ पर फ्लोट डेटा डालता हूँ 10.25 and it says me scan data is 10.25 and its type is class 4. Okay, absolutely fine. And if I want to scan a integer type of data, so no need to convert it.
because by default it will be giving me if I want to convert, if I want to scan a string type of data, if I want to scan a string type of data, then no need to convert, because by default it will be giving me a string type of data only. ठीक है, जो इनपुट फंक्शन है वो मुझे स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा रिटर्न करेंगे, तो मुझे कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मुझे नॉन स्ट्रिंग डेटा स्कैन करना है, नॉन स्ट्रिंग डेटा यूजर से इनपुट करके लेना है, तो मुझे जो टाइप का डेटा इनपुट करके लेना है वो टाइप का मुझे यहाँ पर कन्वर्जन टाइप लगाना पड़ेगा, so that data will be converted to my specific type. Now can you tell me from object oriented programming point of view what's happening over here? A conversion. So the data which will be entered by the student will be float type only. कैसे हो रहा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू? बताओ। टाइप कास्टिंग से। C++ में अगर मुझे टाइप कास्टिंग करनी होती तो जो टाइप है वो ब्रैकेट में जाता है, आगे की चीज ब्रैकेट में नहीं जाती बेटा, ध्यान दो। ये ऐसे सर नहीं जो हम होगा। लोग इनपुट ले रहे हैं वो स्ट्रिंग में ही होगा, फिर उसका फ्लोट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फ्लोट अरे क्लास का। बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन हो कैसे रहा है ये मुझे बताओ ना। देखो अगर C++ में हम करते तो इस तरीके से करते हम, ठीक है ना, टाइप कास्टिंग। जो टाइप है उसको हम ब्रैकेट में डालते, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, हम टाइप को ब्रैकेट में नहीं डालते, जो डेटा आ रहा है ना उसको हम ब्रैकेट में डालते और बाहर क्लास का नाम लिखते हैं। तो कैन यू टेल मी व्हाट्स हैपनिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंस्ट्रक्टर के जैसे कर रहे? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों ऐसा करते हैं? Because this is object oriented programming style, so you need to tell me, you have studied object oriented programming ना, तो बताओ मुझे। सर क्योंकि वो फ्लोट एक क्लास है। वो फ्लोट एक क्लास है इन पाइथन। Float is a class name, yes. Float is a class name, yes. Int is a class name, so we will write int. Float is a class name, so we will write float. अगर आपकी स्टूडेंट क्लास है तो आप स्टूडेंट लिखो, जो आपको क्लास लिखो। क्या होगा यहाँ पर पता है आपको? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि इनपुट फंक्शन जो है वो एक फंक्शन है, ये फंक्शन आपको एक डेटा रिटर्न करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा, वो वैल्यू मिलेंगी इस फ्लोट को, ठीक है। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल ये होगा क्या कि अगर आपने स्कैन की वैल्यू 20.5, तो यहाँ पर फ्लोट क्लास है और फ्लोट क्लास को 20.5 ऐसे होगा, ठीक है, 20.5 फाइन। अब इससे होगा क्या, इससे फ्लोट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लिसन माय वर्ड्स वेरी केयरफुल। इससे होगा क्या कि फ्लोट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उस कंस्ट्रक्टर को ये वैल्यू पास होगा। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा कि ये वैल्यू को यूज करके एक ऑब्जेक्ट बिल्ड करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करेगा, और वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस या एड्रेस जो है वो इस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, इस वेरिएबल में आ जाएगा, जो वेरिएबल आप यहाँ पर लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई राइट f इक्वल्स लाइक दिस, ठीक है। तो f एक ऑब्जेक्ट बना फ्लोट क्लास का और वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ कौन सी वैल्यू से? 20.5 से, ठीक है। अब ये 20.5 जो वैल्यू है वो डायरेक्टली मैं यहाँ पर डालू या मैं किसी एक फंक्शन से लू, ये मेरा लुकआउट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 20.5 वैल्यू डायरेक्टली लिखा या फिर मैंने एक फंक्शन से लिखा। वो फंक्शन इमेजिन करो कि इनपुट नाम का फंक्शन, और ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन इनपुट लेता है आपके कीबोर्ड से और यहाँ पर आपको जो वहां पर डिस्प्ले करना है वो आप डिस्प्ले कर दो। क्या भाई डेटा दो, यहाँ पर डेटा डालो या एंटर द डेटा या एंटर द वैल्यू, एंटर द एलिमेंट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू पुट यू कैन पुट, ठीक है। अब ये इनपुट फंक्शन क्या करेगा, कीबोर्ड से स्कैन करके लेगा और वो जो डेटा स्कैन करके लेगा बाय डिफॉल्ट वो डेटा को इंटीजर में रखेगा, सॉरी स्ट्रिंग में रखेगा, और स्ट्रिंग का जो डेटा है वो जाएगा आपके फ्लोट क्लास को। तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो कंस्ट्रक्टर आपके जो स्ट्रिंग डेटा है उसको कन्वर्ट करेगा फ्लोट में, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा फ्लोट टाइप का और वो ऑब्जेक्ट असाइन करेगा आपके ऑब्जेक्ट एफ को।
ठीक है, so this is how it will be done internally by Python. You need not have to be worried about it. आपको खाली ये लिख देना है क्लास का नाम, वो उससे कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होके आपके ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएगा, आपके वेरिएबल को असाइन। आर यू गेटिंग इट हाउ इट इज गेटिंग डन? Yes, sir. Yes, Okay, sir. good. Fine. So this is about your input and output. आपको पूरे पाइथन के अंदर जहां पर भी यूजर से इनपुट लेना है तो आप इनपुट फंक्शन यूज करोगे, और बाय डिफॉल्ट जो इनपुट फंक्शन है वो आपको स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। आप उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है इंटीजर में कन्वर्ट करो, आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है फ्लोट में कन्वर्ट करो। इट्स अप टू यू। ठीक है, अब इसके बाद में सर एक हमें डाउट है। हेलो सर, सर एकेडमिक ईयर क्या है? 21-22 बेटा एकेडमिक व्हाट ईयर? डिस्टर्बेंस है? हाँ, कैन यू रिपीट योर डाउट प्लीज? सर वो पूछ रहे हैं कि एकेडमिक ईयर 21 और 22 डालेंगे ना? तो क्या होगा, 21 22 डालेंगे ना, यही तो चल रहा है एकेडमिक ईयर। सर मेरा एक डाउट है। हाँ, सर जैसे पहले हम जो टाइप ऑफ आई और आईडी ऑफ आई बिना प्रिंट के लिख रहे थे, तो यहाँ पे भी बिना प्रिंट के लिखेंगे तो प्रिंट हो जाएगा? नहीं, यू नीड टू मेक यूज ऑफ प्रिंट। वो आपके इंटरप्रिटर पे हो जाता है लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ये यहाँ पर एंटर द डेटा में तुम बोल रहे थे क्या 2021-22 ऐसा डालना? यहाँ पर बोल रहे नो, थे क्या बेटा? नहीं नहीं नहीं, कैलेंडर कैसे 22 चालू है ना? सर वो एकेडमिक ईयर पूछ रहे थे। तो अच्छा, एकेडमिक ईयर 21-22 चालू है ना, कैलेंडर ईयर 22 चालू है, लेकिन आप लोग का एकेडमिक ईयर जो है ना वो आपका जुलाई से स्टार्ट होके जून तक चलता है। ठीक है, तो एकेडमिक ईयर ही आता है यहाँ पर सब जगह, हमारे कैलेंडर ईयर नहीं आता है बेटा। सर। हाँ, हाँ सर, पाइथन लैंग्वेज में सिर्फ प्रिंट ही यूज होता है, प्रिंट एफ कभी भी यूज नहीं होता है, राइट? प्रिंट सिर्फ प्रिंट ही यूज हो। हाँ, प्रिंट प्रिंट ही यूज होगा। और एक फॉर्मेटिंग के लिए एक और ऑप्शन है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन बाय नाउ वी विल बी वर्किंग ऑन प्रिंट। ओके। प्रिंट एफ नहीं है। Hello, sir. प्रिंट इज हाँ बोलो। Sir, if the value of I is 20 and the value of F is 20.5 or हाँ, 20.0, so will they have the same location or different location? डिफरेंट लोकेशन Okay, sir. they will have different. Okay, so with this what we will be doing कि यहाँ पर हमारा इनपुट पार्ट भी हो जा रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक कुछ इफ एल्स ऐसा कुछ यूज कर लेते so that then we can work on other data structure like list and all those stuff. So what I will be doing, अच्छा, if else कुछ भी यूज करने के पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि यहाँ पर इंडेंटेशन यूज होता है पाइथन। क्या यूज होता है? इंडेंटेशन। ठीक है, indentation is used to specify a block. I repeat, indentation is used to specify a block. ठीक है, C++ और जावा में ब्लॉक को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। क्या यूज करते हैं हम? ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ये C++ और जावा के अंदर यूज होता है। और पाइथन के अंदर ब्लॉक को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं इंडेंटेशन। अब ये जो इंडेंटेशन है ये सिंगल स्पेस भी हो सकता है, मल्टीपल स्पेस भी होता है। मोस्ट यूज्ड इंडेंटेशन इज अ टैब स्पेस। आई रिपीट, मोस्ट यूज्ड इंडेंटेशन इज अ टैब स्पेस। अब वो आता कैसे ये देखो आप, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें आपने मिस्टेक नहीं करना है कि मैंने इफ यूज कर रहा हूं। अब मैं इफ ऐसे भी यूज कर सकता हूँ, इफ दिस वेरिएबल is equals to say uh, say 20.5
नहीं, मैं ये क्यों करूँ? अच्छा, अगर मैं कंपैरिजन ऐसे करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कोलन डालना पड़ता है, ठीक है। स्टार्ट ऑफ ब्लॉक, या जब भी ब्लॉक आए पाइथन के अंदर तो कोलन डालना है और एंटर मारना है। अब देखो गौर से, जैसे मैंने एंटर मारा तो यहाँ पर आगे आया, जो कर्सर है वो इतना स्पेस आगे आ गया। ये जो इतना स्पेस जो कर्सर हमारा आगे आया है ना, दिस इज कॉल्ड टैब स्पेस। तो बाय डिफॉल्ट अभी इसने इंडेंटेशन दिया। कैसे इंडेंटेशन दिया? जैसे मैंने यहाँ पर कोलन डाला तो इट अंडरस्टूड, पाइथन इंटरप्रेटर अंडरस्टूड दैट इट इज गोइंग टू बी अ ब्लॉक। अब ये ब्लॉक है एक, तो ब्लॉक के लिए उसने इंडेंटेशन दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ वट एवर आई वॉन्ट टू प्रिंट। फॉर एग्जाम्पल I want to print say true. सर उधर डबल इक्वल्स नहीं आएगा? एक मिनट बेटा बता दो। एल्स, एल्स एक अलग ब्लॉक है, तो एल्स के बाद में भी मैं कोलन डालूंगा और यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा जो भी मुझे प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस यूज किया, और कर्ली ब्रेसेस हम यूज कर सकते, सॉरी पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस मैंने यूज किया। पैरेंथेसिस हम यूज कर सकते, but in Python it is strongly recommended that you should not make use of parentheses. Instead you make use of space. What do? You make use of simply a space, ठीक है। सो वेरिएबल, और मुझे उसको कंपेयर करना है तो मैं डायरेक्टली उसको इक्वल से कंपेयर करता हूँ। डबल इक्वल आना चाहिए वहां पर, तो आई एम कंपेयरिंग इट। तो इफ वेरिएबल इक्वल्स 20.5, so I would say print true, else I would say print false, ठीक है। So let's save this code. Let's come here. Let's interpret it, and I say 20.5, and the output is true. And if I say that 20.6, so the output is false, ठीक है। तो वैल्यू को उसने कंपेयर किया और उसने हमें बता रहा है। Now, so this is how we can make use of if else. If space, this is a recommended, ठीक है। आप parentheses यूज कर सकते हो, but the recommended is if space, then whatever you want to compare the variable name, and then the comparison, जो आपको comparison करना है, okay। और फिर इसके बाद में जिस वैल्यू से आपको कंपेयर करना है वो वैल्यू आप डाल दो, okay। For example, now suppose I am checking for two values. I am scanning two values, and say I am working on, say, integer, so variable 1, and then I will be scanning one more, say variable 2, and I say variable 1 is greater than variable 2, then I would say first number is greater, else I would say second number is greater, ठीक है। So I come here and then I say enter the data 10, enter the data 20. Oh, where is that? सर where 1 where 2 करना पड़ेगा प्रिंट स्टेटमेंट में। ये और वो आपने इस टाइप में print कर सर देता हूँ। वेर वन लिखना पड़ेगा।
So first is 10, 20, second is 20, and it says second number is greater. Fine. Execute it again. First is 20, second is 10, and it says first number is greater. Okay? So a very simple way by which you can make use of blocks and if else. Then in Python you can have elif also. So if you got say 3 numbers, Control C, Control V, and I got the third variable. So if variable 1 is greater than variable 2 and variable 1 is also greater than variable 2, variable 3, then I can say first number is a test, and here I can have elif. So this is a combination of else if, okay, elif, और मैं यहाँ पर डायरेक्टली कंडीशन डाल सकता हूँ जो मुझे कंडीशन डालनी है. तो elif वेरिएबल 2 और 3 को मुझे कंपेयर करना है क्योंकि वेरिएबल 1 दो में से एक से स्मॉलर है तो ही मैं एलिफ में आऊंगा. So I can compare variable 2 is greater than variable 3. So here I can say second number is greatest, and into this else I would say print third is or third number is greatest. ठीक है. So first I go for 10 and then 20 and then 30 and I get the answer third number is greatest. Then I go for one more check, say 30, 20 and 10. I get the first number is greatest. I go for one more check and I say 10, 30 and 20. And I get the answer as second number is greatest. Okay? So it is working for all the conditions and it is checking that which one is greatest among the three. So we are making use of elif. Elif is the combination of else if. Okay? तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कंडीशन डाल सकते हो. जनरली एल्स में आप कंडीशन नहीं डालते. तो elif is a combination of else if. So there you can put up a condition. Fine. So if this condition is true, and see here I am putting end. So end is a keyword in Python. जो कि आपके डबल एम्परसेंड जो हम यूज करते हैं ना C++ और इवन जावा में, तो ये उसी का रिप्लेसमेंट है AND. और जो आप पाइप यूज करते हो और के लिए, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली और डाल सकते हो. ठीक है. तो दिस इज द कीवर्ड एंड which can be used over here directly. Okay, fine. Any query so far? No, sir. We will not be completing the second program of the first experiment क्योंकि इसके पहले हमको तीनों डेटा स्ट्रक्चर्स को देखना है. So that will be completing in the next part. And in the next part or in the next lab, how to measure time taken between lines of code. How to measure time taken between lines of code. I did not understand your question. Can you unmute your mic and तो मतलब कि एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लेता है हर पर्टिकुलर मेथड? that you cannot check. That you cannot check because that differs from machine to machine. How can you check that? अभी मेरी मशीन पे अगर मैं चेक करके भी बताऊँ, आपकी मशीन ही अलग, आपका कॉन्फ़िगरेशन अलग, आपका सिस्टम पूरा सर अलग. वही हमारे मशीन में चेक कैसे करेंगे फिर भी सर? वो आप ऐसे चेक भी नहीं कर सकते. यू कैन हैव multiple measures if you want to compare the speed of the programming languages. तो ऑलरेडी जो बेंचमार्क्स अवेलेबल है वो बेंचमार्क से आप चेक कर सकते हैं. ठीक है.
it cannot be a consistent way of comparing on your own machine, but what you can do, आपको ऑनलाइन बेंचमार्क्स काफी मिल जाएंगे। आप बेंचमार्क डायरेक्टली देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि भाई डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो बेंचमार्क्स है वो क्या है, कौन सी लैंग्वेज किससे फास्टर है, किससे स्लोअर है। बट इन जनरल पाइथन इज स्लोअर देन योर सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ये दोनों लैंग्वेज से पाइथन जो है वो स्लो है, बट इट इज स्पीडिंग अप। लेकिन जो स्लो है वो इतनी स्लो नहीं है कि आपको मालूम पड़े डिफरेंस। वो काफी क्रिटिकल एप्लीकेशन है। जो रियल टाइम एप्लीकेशन है ना, वहां पर वो स्पीड मैटर करती है, जो स्पीड डिफरेंस है वो मैटर करता है। आपके और हमारे एप्लीकेशन के लिए तो बिल्कुल वो स्पीड डिफरेंस जीरो है, समझ, वो कंपेरेबल है ही नहीं, वो आप फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। तो स्लो का ये कतई मतलब नहीं कि आउटपुट आपको आराम से दिखेगा, नॉट एट ऑल। स्लोअर एज कंपेयर टू सी एंड सी प्लस प्लस, दैट टू फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशन। जो रियल टाइम एप्लीकेशन होते हैं ना, वहां पर जैसा कि आपका एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, एक मिसाइल आ रही है, और आपके रेडार को उसको डिटेक्ट करके उसको डिफ्यूज करना है, ठीक है, तो ये आपका रियल टाइम एप्लीकेशन। तो यहाँ पर स्पीड बहुत मैटर करती है। ओके, कि आपने कब उसको ओके डिटेक्ट सर। किया और आपने कब एक्शन लिया। फाइन। तो ऐसे टाइप के जो रियल टाइम एप्लीकेशन है, वहां पर रियल टाइम एप्लीकेशन में स्पीड डिफरेंस मैटर करता है। हमारे जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें स्पीड डिफरेंस कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। ओके, तो नॉट टू वरी फॉर दैट, बट देन टू व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज द इजीनेस ऑफ यूजिंग द लैंग्वेज। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ना, कि लैंग्वेज कितनी आसान है हमारे लिए यूज करने के लिए। अब यहाँ पर आप यस देखो सर। कितनी आसानी से आप कितना सब काम कर ले रहे हो, और यही काम आपको वहां पर करना पड़े दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो कितने कुटाने वहां पर, कितनी चीजें आपको करनी पड़ती है। ओके, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी शुड स्ट्रेस मोर ऑन दैट। फाइन। आपको स्पीड डिफरेंस देखना है तो आप ऑनलाइन बेंचमार्क्स अवेलेबल है, दैट यू कैन सी। ओके, सो आई एम होपिंग दैट यू आर गोइंग विथ मी, और आपने इतना कर चुके हैं आपके कोड के अंदर, आपके प्रोग्राम के अंदर, एंड दिस शुड बी मोर देन इनफ फॉर योर फर्स्ट प्रोग्राम। नॉट अ बिग डील, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको चीजें समझना है। टाइप से आप क्या कर रहे हो, आईडी से आप क्या कर रहे हो, लोकेशन सेम और डिफरेंट कब होते हैं, इम्यूटेबल क्या है, म्यूटेबल क्या है, वो सब चीज आपको समझना है। और वो सब चीज आपको थियरी में भी डालना है। हाँ, यहाँ पर थियरी में अच्छी खासी थियरी आपकी आनी चाहिए, एंड दिस विल कंप्लीट योर फर्स्ट, यू कैन से फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पर आप कंक्लूजन भी डाल सकते हो, क्या आपने क्या सीखा, आपने क्या समझा। ओके, तो कंक्लूजन आप यहाँ पर डाल देना। ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाए। ओके। हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर डेटा के सारे नंबर सेम हुए तो? डेटा के अगर सारे नंबर सेम हो गए, अगर अलग अलग वेरिएबल में भी है तब भी वो सब सेम लोकेशन पे जाए, ठीक है, चेक करो, आप कोई दिक्कत नहीं है। A = 20, B = 20, C = 20, D = 20, ऐसा जितने वेरिएबल्स लेना है सब ले लो, और फिर सबके एड्रेसेस आप डिस्प्ले करके दो, सबके एड्रेसेस आपको सेम मिलने चाहिए, ठीक है। इट विल बी टेकन केयर बाय पाइथन, यू नीड नॉट हैव टू वरी फॉर, बट यू शुड नो दैट, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, यू शुड नो दैट, आपको ये पता रहना चाहिए, क्योंकि नहीं ऐसे सॉरी ही सर, क्वेश्चन। आई एम आस्किंग अबाउट द लास्ट सिचुएशन, जो ग्रेटर नंबर सर का हमने तो किया। आप एक कंडीशन लेनी पड़ेगी ना, अगर सर एक तीनों और नंबर एलिफ लेने लेना वाले हैं पड़ेगा तो ना, उसका उसमें डिफरेंट तीनों को नंबर इक्वल इक्वल लेना पड़ेगा। क्योंकि इक्वल की यहाँ पर कंडीशन नहीं है ना, इज ऑल्सो राइट। यहाँ पर खाली ग्रेटर ग्रेटर हम चेक कर रहे हैं ना, तो खाली ग्रेटर ग्रेटर जब आप चेक कर रहे हो तो वो कंडीशन ये भी फॉल्स हो जाएंगी, ये भी फॉल्स हो जाएंगी, तो बाय डिफॉल्ट आप किस में आ जाएंगे, थर्ड में आ जाओ, एल्स में आ जाओ। तो अगर तीनों अगर सेम है तो आपका क्या आ जाएगा आउटपुट, थर्ड इज ग्रेटेस्ट। लेट्स चेक इट, चेक कर लेते हैं। 10 10 ठीक है, थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट। जो हम कर रहे हैं वही होगा, हमने वहां पर इक्वल की कोई कंडीशन डाली ही नहीं, तो वहां पर इक्वल की चेकिंग नहीं हो रही है। ओके, अगर आप वो डाल दो तो वो भी काम हो जाएगा। यस, यू कैन मॉडिफाई दिस कोड, दैट्स अ गुड क्वेरी, यू मॉडिफाई दिस कोड एंड मेक इट अकॉर्डिंग, ग्रेटर देन इक्वल टू आप डाल सकते हो। ओके, सो
Hello, sir. हाँ बोलो बेटा. Sir, is if else also the part of the experiment or just this It's a part, variable? क्योंकि वो अलग से नहीं है. It's a part of it. क्योंकि हमको अलग अलग नहीं सीखना है, इसी में लेके चलना है. Okay, sir. Thank you. सर यही एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का फर्स्ट प्रोग्राम है. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में 2 प्रोग्राम है आपके, और ये फर्स्ट प्रोग्राम है आपका, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. Okay, I have given the link for the attendance of the first lab. So follow that link, give me the attendance, and then you people can do. Meanwhile, if you have any query, let me know. मेरा बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बड़ी आसान है, बड़ी यूजफुल है, और एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है. और आपको मैंने सुबह में भी बताया कि इट्स अ टॉप मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न. उसका एप्लीकेशन इतना ज़्यादा है कि बेसिक सिस्टम लेवल से लेके वेब एप्लीकेशन से लेकर मशीन लर्निंग, एआई, सब जगह यूज है, सब जगह यूज है. ठीक है. और इसको सीखना और समझना काफ़ी आसान है. यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स इनटू दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So I urge each one of you, क्या इसके सभी सेशंस में अच्छे से ध्यान दो, समझो, और खुद से करना शुरू करो. खुद से करना शुरू करो. कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. कोई हमको कुछ हमारा सिस्टम ब्लास्ट नहीं हो जाएगा अगर हमने खुद से कुछ चीजें प्रैक्टिस कर. ठीक है. तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन लर्निंग. लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग. क्या बात है, स्टॉप रिकॉर्डिंग.